جی وہاں کال کٹ گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے 2015 میں ان کو چیلنج دیا, ان کا جواب نہیں آیا. تو 2015 میں چیلنج دیا تھا, ہم نے نہیں دیا تھا. نہیں تو اس کے بعد آپ کی جانب سے بھی ایک تحریر غالباً موصول ہوئی, آپ نے واٹس ایپ کیا, کال کیا, بقول آپ کے وہ فوٹو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو پہچانے نہیں. تو یہ ساری تفصیل اصل میں آج انٹرنیٹ پہ سنا میں نے, مجھے کسی نے وہ لنک دیا تھا, کافی مشہور ہو رہی ہے وہ. جی جی جی. میں محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی سے ہوں. تو آپ کا تعارف بھی وہاں پڑھنے کو ملا مجھے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ان کو چیلنج دیا تو میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں. آپ بمبئی تشریف لائیں گے, آپ کے پورے اخراجات میرے ذمہ ہیں. جی بہت خوب. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے, ہم تو کسی کو خام خواہ نہیں چھیڑتے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. دیکھو اصل میں جو فاروق خان رضوی کے تعلق سے آپ نے باتیں کہی نا مولانا صاحب, اس میں وجہ کیا ہے کہ ہم خام خواہ کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں. فاروق رضوی کم سے کم 50 علماء دیوبند کو چیلنج کر چکا ہے, اس لیے ہم اس سے مخاطب ہوئے ہیں. دیکھو اصل میں کیا, فاروق خان رضوی کے حوالے سے آپ نے بھی جو باتیں کہی ہیں اس میں, تو وہ باتیں تو 100% درست ہیں. اس کا وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں, اور وہ ایک مبلغ ہیں ہماری جماعت کے, اور جو ان کی معلومات ہے وہ پیش کرتے ہیں. اب رہی چیلنج کی بات, تو آپ علماء کو چیلنج کیجیے نا, آپ ان کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے اصل میں چیلنج کی شروعات انہوں نے کی ہے, انہوں نے باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے ہمیں چیلنج کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی ان کی ملاقات ہوئی نا, بڑے بڑے ذمہ داروں نے بریلوی جماعت کی اس کی تعریف کی ہے, اس کے بعد ہم نے ان کو چیلنج قبول کیا. آپ نے آگے یہ بھی لکھا کہ مفتی متی الرحمان بھی فراغ اختیار کر گئے, انہوں نے بھی ہمارا جواب نہیں دیا, پوری جماعت بریلوی علم سے خالی ہے, فلاں ہے فلاں ہے. تو میں علامہ صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا, اصول مناظرہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ینبغی للمناظرین ان یکونا للمتساویین فی العلم, یعنی دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے, اور تساوی فی العلم جو ہے وہ امر تقریبی ہے, یعنی دونوں مناظر اپنے مسلک کے دقا تعلیم ہوں. ہم پلہ ہے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اب آپ عالم ہیں تو آپ غیر عالم سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بات میں اپنا حصہ ملے گا ہی نہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ کے اکابرین کے عقائد کفریاں ہیں, تو آپ اس پر مناظرہ کر لیں مجھ سے ممبئی آ کر, یا آپ میرا خرچ اٹھائیں, میں سجان گڑھ جہاں آپ رہتے ہیں میں وہاں آتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ تشریف لائیں, آپ کو جو ہے مناظرے کا شوق ہے تو انشاءاللہ. نہیں الحمدللہ, آپ نے چونکہ میرے مسلک پر, میرے مذہب پر, میرے بزرگوں پر چھیٹا کشی کی ہے, اور اوقات سے بڑھ کر بات کی ہے. آپ فاروق خان رضوی کے حد تک محدود رہتے تھے, آپ نے بزرگوں پر کیوں حملہ کیا, اور پوری جماعت کو متون کیوں کیا آپ نے کہ پوری جماعت بریلویت میں سب علم سے خالی ہے, اور یہ ہے وہ ہے. مریدوں میں بیٹھ کر ڈھینگے ہانکنا بڑی بات نہیں ہے مولانا. مفتی متی الرحمان صاحب کو دیا, اسی موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مفتی متی الرحمان صاحب تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو آپ نے خواہ کا شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. یہ تو آپ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو کتاب مطلب ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو ان کی تحریریں بھی مل جائیں گی پڑھنے کی, اور کیا اعتراض کیا, آپ نے کیا جواب دیا, اور کس طرح انہوں نے جو ہے مناظرے کا وعدہ کیا تھا پٹنہ جمشید پور کے اندر, اور پھر آخری آپ اس میں مدعی تھے یا قائل تھے؟ تو وہ تو انشاءاللہ آپ کو خود ان کے دستخط کے ساتھ تحریریں مل جائیں گے. یار ابھی بتا دیجئے نا, میں تو بھی الحمدللہ 24 گھنٹہ مناظرے کے لیے تیار رہتا ہوں. آپ ابھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیں گے کہ الحمدللہ بفضل خدا بفضل رسول یہ فقیر حاضر ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے مطلب انصاف کی بات یہ ہے, میں آپ کا نام سنا ہے, آپ کی زبان سے ہی سنا ہے, میں کیسے کہوں کہ آپ جو ہے مناظرے کی مطلب قابلیت, آپ کو ایسی تحریر ہمارے سامنے پیش کیجیے جس کے اندر آپ کے لوگ جو ہے آپ کے اوپر اعتماد ذمہ دار لوگ, اس کے بعد انشاءاللہ کریں انٹرنیٹ پر جا کر میرا نام سرچ کر لیں, مفتی کلیم حنفی رضوی. اب رہی بات آپ جو درس و تدریس کرتے ہیں, جو کتابیں پڑھاتے ہیں, الحمدللہ فقیر بھی وہ کتابیں پڑھاتا ہے, اور اس کے گائیڈ آپ سے زیادہ لوگ فاروق رضوی بھی جانتے ہیں. نہیں, بات جاننے پہچاننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے, پھر خواہ ان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے مسلک کے مبلغ ہیں, داعی ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اور آپ کے اکابرین کے کفر کو واضح کر رہے ہیں. تو آپ کو اتنی اگر بوکھلاہٹ ہے تو آپ ہم سے بات کریں نا.
तो आप ये अच्छा ये कहीं लिखा है कि जो गैर मशहूर हो उससे बात न की जाए, ये कहाँ लिखा है? हेलो, हाँ, आप कह रहे हैं कि फारूक रजवी के मुकाबले में आप कम मशहूर है, तो गैर मशहूर से बात न की जाए, ये उसूल मुनाजरा है क्या? ये कहाँ से उसूल मुनाजरा हो गया? मैं वही पूछ रहा हूँ, तो ये आपने कैसी आबस की शर्त लगा दी कि आप उनके मुकाबले में कम मशहूर हैं? अरे मैं मुतलक मशहूर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ मैं। फारूक रिजवी की रियासत क्या है, इल्मी एतबार से क्या उनका मकाम है उलमा के अंदर, कितनी उनकी तकलीफात है? मैं फारूक रजवी साहब को बहुत करीब से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी उनके छोटे मोटे बयान मैंने देखे हैं, क्लिप्स वगैरह, उसमें वो बदमज़हबों का रद्द करते हैं वो। और उन्होंने कभी दावा भी नहीं, आपने खुद भी तो उनकी क्लिप दिखाई कि उन्होंने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ। फिर मैंने अभी आपको उसूले मुनाजरा बताया कि दोनों मुनाजिर का इल्म में हम पल्ला होना जरूरी है, ये मुनाजरे के लिए शर्त है। जरूरी है, लेकिन फारूक रिजवी अगर ये कहते हैं कि मैं हमला नहीं हूँ तो इंशाल्लाह फिर हम मुनाजरा कर लेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि फारूक रजवी तो अपने बयान में कह चुके, जो आपने दिखाया ना कि मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे पोस्टर में आलिम ना लिखा करें। वो उनसे सब दिन आपको मुझसे बात करने में क्यों मौत आ रही है? मुझे मौत नहीं आ रही है। हाँ, तो आप मेरे चैलेंज को कबूल करें, आप बम्बई तशरीफ लाएं, 10 जनवरी तक का आपको टाइम है। आपके पूरे अखराजात मेरे जिम्मा है, किताबें सब मेरी लाइब्रेरी में, मेरे मदरसे में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक की तरफ से मैं मुनाजिर की हैसियत से हूँ। आप आएंगे तो अगर आप बगैर किताबों के भी आएंगे तो किताबें इंशाल्लाह आपके यहाँ मिल जाएंगी। चलिए मैं आपके यहाँ आता हूँ, कौन सी तारीख को आऊँ, उसका खर्चा आप उठाएंगे? आपका फर्ज वालिद का खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी जो शर्त है वो ये है कि आप अपनी हैसियत वाज़ेह कीजिए। मेरी हैसियत मैं आने के बाद वाज़ेह करता हूँ ना। पहले आप अपनी हैसियत वाज़ेह कीजिए। आपको अब तक इतनी देर की गुफ्तगू से समझ में नहीं आया मेरी हैसियत क्या है? जो है हम इंतजाम आपको इतनी देर की गुफ्तगू में मेरी हैसियत समझ में नहीं आई। मौलाना बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह बता रहा हूँ कि आप मुनाजरे की तारीफ भी नहीं कर सकते मेरे सामने। चलिए आप मुनाजरे की तारीफ कर दीजिए, वल्लाही लाज़िम मैं बता रहा हूँ आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं। क्या हो सकता है आप ना हो तो बात वाज़ेह हो जाए ना। मैं ही बोल रहा हूँ, मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी बाकायदा अपने जामिया का लेटर पैड पे मैं आपको अपनी तहरीर भेजूंगा कि मौलाना मुफ्ती अब्दुल हक कासमी के चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। आपने जो जमात के जिम्मेदार लोग हैं उनकी तारीफ चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह सारी बातें होंगी, लेकिन जब मसलक पे हमला होता है ना मौलाना, तो मेरी गैरत खामोश नहीं रहती है। और ये सारे मरासिम तय करने की मैं जरूरत नहीं महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 रुपए में मुनाजरा फतेह कर लेता हूँ फोन पर। अगर आपकी जमात आपको अपने मसलक का नुमाइंदा समझती है तो मुनाजरा होगा। तो आपकी जमात ने आपको नुमाइंदा समझा? दारुल देवबंद का लेटर पैड था आपके पास? मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जो आपने फारूक खान रज़वी को भेजा वो तो आपका अपना लेटर पैड था, वो कौन सा दारुल देवबंद का लेटर पैड था? वो तारीर वाली तहरीर अलग है। हर आलिम दीन आपको मालूम होना चाहिए, इहकाक हक व इब्ताले बातिल के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। ये सब तो हीला साजी है, जमात का लेटर पैड लाओ, फलाह का लाओ, फलाह को लाओ, ये सब तो मुनाजरे से फरार के रास्ते होता है या फर्द वाहिद की तरफ से होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूरी जमात का नकीब बन के तर्जुमान बन कर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मुझे शिकस्त हो गई या आपको शिकस्त हो गई, नहीं वो जमात की शिकस्त या जमात की फतह मानी जाएगी, वो घबराइए मत आप। किसी बड़े आदमी से मुनाजरा करते तो पता चलता, किसी छोटे मोटे को शिकस्त दे दी क्या हुआ। अरे यार फिर वही बात कर रही है, तो बिल्कुल फरार वाली बात है यार। छोटा मोटा आप किसको छोटा मोटा कह रहे हैं? आप मेरे हवाले से जानते क्या? तो आपको छोटा मोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नूर आलिम अब्दुल्ला मदनी को फातिहा खल्फल इमाम पर मैंने नाको चने चबवाए हैं, इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए आप। अब अगर कोई आदमी इंटरनेट नहीं चलाता हो या किसी को इंटरनेट का इल्म ना हो तो उसे भी तो आप तारुफ करवाएंगे ना। नहीं तारुफ तो करवाऊंगा, मैं तारुफ करवा रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं छोटा मोटा। और ये मैं क्या कहता हूँ कि इहकाक हक व इब्ताले बातिल के लिए क्या कोई आलिम का ये फर्ज नहीं बनता, जब उसके मसलक पर बात आए तो वो सामने वाले से डर जाए, भिड़ जाए? आपने फारूक खान रज़वी को जो बार बार खिताब किया ना मौलाना, आप याद दिला रहे थे, आप खुद भी तो याद कीजिए ना उस शर्त। मैं क्या कह रहा हूँ, आप फारूक खान रज़वी को बार बार कह रहे हैं ना, आपको मालूम है वो आलिम नहीं, और वो भी इकरार कर चुके हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। नहीं वो आलिम नहीं है, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो आलिम तो फिर मुनाजरे की ये शर्त यंबगी लिलमुनाजिरैन अन यकूना लिलमुतसाबियैन फिल इल्म, इसको तो आप पहले ही तोड़ रहे हैं।
इस को तो आप पहले ही तोड़ रहे हैं उनको चैलेंज करके। आप भी जानते हैं, आपकी पूरी जमात जानती है कि फारूक रिजवी कभी किसी आलिम से मुनाजरा नहीं कर सकेगा। नहीं, फारूक खान रिजवी साहब हमारी जमात के मुबल्लिग हैं, दाई हैं, उनको जितनी मालूमात है उतनी वो पेश करते हैं और वो वलमा के बलबूते पे मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। कभी कहा है उन्होंने? आज तक कोई एक वीडियो आप उनकी पेश कर दें जिसमें उन्होंने कहा? तो आप बताइए ना उन्होंने किससे मुनाजरा भी किया हो? उन्होंने तो किसी से मुनाजरा नहीं किया। कितने? अरे भाई आप कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ फारूक खान रिजवी साहब ने किसी से मुनाजरा किया आज तक? उनका मुनाजरा न करना इस बात की दलील है कि वो मुनाजिर नहीं है और वो दावा भी नहीं करते हैं कि मैं मुनाजिर हूँ। सामने कोई आतंकी है, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। आपने जो कहा ना कि आइंदा फारूक खान रिजवी उलमा देवबंद के खिलाफ न बोले वरना ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। फारूक खान रिजवी बोलेगा और बरेलवी जमात का हर फर्ज देवबंदी मौलवियों के कुफरी अकाईद को खोल खोल के बताएगा कौम के सामने। और आप में दम होना मौलाना, यही नंबर है मेरा 9820-672-770। इससे पहले जिस पर मैंने कॉल की और आप नमाज का बहाना करके आप 1 घंटा फरार रहे। बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते हैं आप लोगों की समझ है कि आप लोग जो है मतलब हकीकत को छुपा के उसे फरार का नाम क्या हकीकत को छुपा रहे हैं बताइए ना। मैं सामने से आपका चैलेंज कबूल कर रहा हूँ, आपको मुंबई आने की दावत दे रहा हूँ, मैं सुधानगढ़ आने की बात कर रहा हूँ। तो शर्त है कि आपकी कोई हैसियत हो। मेरे पास आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास सुबह शाम तक 50 फोन आते हैं, सब कहते हैं हम तैयार हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपको 500 फोन आए, मुझे भी दिन में से 1000 फोन आते हैं गैर मुकल्लिदों के, शियों के, कादियानियों के और कम अकल तबलीगियों के, लेकिन मैं मुंह नहीं लगाता हूँ। लेकिन आदमी की बात से पता चलता है ये आलिम है या गैर आलिम है। आप इतने भी मतलब मर्दुम शनास नहीं है कि आपको लबो लहजे से समझ में आए कि ये आलिम है या गैर आलिम है। नहीं, आप आलिम होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी ना तौहीन कर रहा हूँ, ना आपके इल्म का इनकार कर रहा हूँ, ना आपकी काबिलियत का इनकार कर रहा हूँ, सब कुछ है। लेकिन मेरे पास ये समझ होना कि मैं किसी जमात के नुमाइंदे कर रहा हूँ। अच्छा आप बताएं मुझे क्या करना होगा, आपसे मुनाजरे के लिए क्या करना होगा? आप अपने किसी मोतबर आलिम की, जो आपकी जमात का मोतबर हो और जिसकी जमात की हो, उसकी कोई ऐसी तारीफ तहरीर ला दें कि वो कह दे कि हाँ ये हमारे मतलब मसले की नुमाइंदे हैं। ठीक है, तो ठीक है मौलाना साहब, मैं खुद अपने जामिया के, जहां मैं खादिमुल हदीस की हैसियत से हूँ, अपने जामिया के लेटर पैड पर मेरे जुमला मुदर्रिसीन की दस्तखत के साथ मैं आपको अपनी तहरीर भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आपका मौजूद मुनाजरा क्या है? क्या फरमा रहे हैं? आपकी जानिब से मौजूद मुनाजरा क्या है? आप जिस वक्त वो तहरीर भेजेंगे तो मैं उसी वक्त हाथों हाथ आपको मौजूद मुनाजरे की तहरीर भेज दूंगा। और आइंदा आप अपनी ऑडियो वीडियो फैलाने से जरा बाज रहें फारूक खान रिजवी के हवाले से, और बरेलवी जमात के ताल्लुक से मुतलक ये कह देना कि उसमें सब बेइल्म है और इल्म से कोरे हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। ये डेंगे हाँकना बंद कीजिए मौलाना। वो ठीक है, वो मेरा मामला है, आप मेरे ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश ना करें। आपको तो इतना खौफ सवार है कि आप तहरीर और तबादला तहरीर और ये वो कर रहे हैं। अभी आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप मुझसे अभी फोन पर बात कर लें, अभी मुझसे मुनाजरा कर लें आप। तो मैं बात तो कर रहा हूँ आपसे, फोन बात ही कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ चलिए मुनाजरे का आगाज करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते आप मेरी हैसियत और मेरी शोहरत और ये सब हीला साजियां हैं। मौलाना साहब आप मुनाजरे की सिर्फ तारीफ कर दीजिए, मैं आपको लेटर पैड भेजता हूँ, मैं बजाते खुद अपने खर्च से आपके यहाँ आता हूँ। आप मुनाजरे की तारीफ करें तो लफ्ज़ मुनाजरा का मादा क्या है, मुश्तक क्या है, तारीफ क्या है, लुग़वी इस्तिलाही तारीफ क्या है, जरा बताएंगे आप? मुझे पूछ रहे हैं, आप ये बताइए ना। तारीफ किसी से कोई बात पूछी जाती है तो दो हैसियतें होती हैं, या तो इसलिए कि वो छोटा आदमी है उसे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा है, या इसलिए कि वो बहुत बड़ा ध्यान दे रहा है। आप बताइए किस हैसियत से पूछ रहे हैं? मैं किस हैसियत से पूछ रहा हूँ? मैं इस हैसियत से पूछ रहा हूँ कि जिसने इतना बड़ा कितना बपा किया है वो खुद भी मुनाजरे की तारीफ जानता है या नहीं है? यानी कि आप इम्तिहान ले रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, बिहम्दिल्लाह मैं तुमसे हरगिज छोटा नहीं हूँ। अल्लाह और रसूल की गुलामी में आ गया, मुझे बड़ा बनने का मौका नसीब हो गया और इल्म हासिल करना मकसद नहीं है मेरा। बिहम्दिल्लाह अल्लाह और रसूल के करम से मैं खुद साहिब इल्म हूँ। आप मेरा इम्तिहान लें तो आप कैसे इम्तिहान लेंगे? जबरदस्ती किसी का इम्तिहान? अरे आपने हमारी जमात को चैलेंज किया है ना यार। आप तो चैलेंज किया, उसका कोई जमात का एक अदना का फर्ज होने की हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मौलाना साहब। होगी तो इंशाल्लाह फिर वैसी बात होगी। आप मुनाजरे की तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे फोन पर? उस वक्त सामने आएगा जब आप
मैं क्या कह रहा हूँ अल्लामा, तारीफ इल्म मुनाजरा, मौजूए मुनाजरा, गर्ज मुनाजरा, उसकी लुग़वी तारीफ, इस्तिलाही तारीफ आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये मुनाजिर की सिर्फ तारीफ ही नहीं होगी, मुनाजरा होगा बजाते खुद। अरे यार बताइए, अभी तारीफ के मरहले को आप मुनाजरा गर्दान रहे हैं, तो खुदा न खास्ता आप मेरे मुकाबले में आ जाएंगे तो आप उसको अपनी फतह तस्वुर कर लेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। काहे के लिए कासमी लगाते हो यार? देवबंद में पढ़ने गए थे या घास छीलने गए थे? तो आप जो है इसी चीज का मुनाजरा है कि आपके यहाँ से बगैर फालतू की बातें करें? अरे फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे मुनाजरे की तारीफ पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि सामने वाले में दमखम भी है मुनाजरे का। वो आप फारूक खान रजवी को इस करारी हालत में पकड़ ली, वो बंदे उजरत में थे, वो कह भी रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, फिर भी आप वहाँ झूठ जमा रहे। जरा मुझसे भी बात कर लेना आप। क्या किसी शेखुल हदीस का इम्तिहान लेने लगे तो क्या वो उसे इम्तिहान देगा? ना भाई, जब मसलक का मामला हो, मसलक की आन का मसला हो तो जवाब तो देना पड़ेगा। आपको जिस जबान में कहें उस जबान में बताऊंगा, अरबी में कहें अरबी में बताऊंगा, उर्दू में नहीं, अरबी की तो धोख मत जमाइए। बिहम्दिल्लाह बिहम्दिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, अल्लाह और रसूल के करम से मैं सब कुछ बोल लेता हूँ। आप फिलहाल तो मुझे मुनाजरे की तारीफ कर दें, मुनाजरे की गर्ज़ो गायत बता दें। आप पहले ये लें कि मुझे मालूम नहीं है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बता क्यों नहीं मालूम? मुझे इसलिए मालूम करना है कि सामने वाले को कुछ आता जाता भी है, या अलीफ का नाम भाला, बे का नाम मुलाला रख के मुनाजिर बनने का शौक चढ़ा है उसको। आप जब मुनाजिर मेरे सामने फरीक़े मुखालिफ से दलील मांगते हैं तो किस बिना पर मांगते हैं? आदम इल्म के लिए मांगते हैं या उसके दलील को तक़वियत पहुंचाने के लिए मांगते हैं? क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जब आप मुनाजरे में खड़े होते हैं, कभी मुनाजरा किया भी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुनाजरे में आप फरीक़े मुखालिफ से किसी बात की दलील मांगते हैं तो उस वक्त आप उस दलील से बेखबर होते हैं या किस लिए मांगते हैं? हुसूल इल्म के लिए मांगते हैं या उसके बात को मुअक्कद करने के लिए मांगते हैं? मुनाजरे के अंदर कोई छोटा बच्चा किसी बड़े आदमी से मुनाजरा नहीं करता है। आपने खुद उसूल बताया और भूल गया। तो मैं कह रहा हूँ अल्लामा साहब, जब मैंने उसूल बताया तो मेरा जानना फर्ज है कि आप मेरे हम मुकाबला, हम पल्ला हैं या नहीं है। फारूक खान रजवी को यकीनन वो आलिम नहीं, इसका वो इकरार कर चुके हैं, वो मुनाजिर भी नहीं है, वो हमारी जमात के मुबल्लिग हैं, तबलीग करते हैं जितना उनको मालूम है। आपने क्या कहा? वो कॉलेज में नाकामयाब हो गए, नाकामी का मुंह देखा, ये सारी बातें क्यों की आपने? आपको बताया इंशाल्लाह। या तो फिर आप फारूक खान रजवी के लेवल के आदमी हैं। आपने एक जगह उसमें कहा ना कि फारूक खान ने ऐसी जबान इस्तेमाल की, अपने बाप की असल हो तो मैं वही जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब आप फारूक खान साहब के हम पल्ला है क्या इल्म में? मेरे भाई असल में जबान को करो ना तो पता नहीं कितने हवाले में आपके बड़ों के दे दूंगा। फारूक रजवी देखो मौलाना, डेंगे हाँकना बंद करो, चरबे जबानी से काम मत लो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो आप मेरे 10वें हिस्से को भी नहीं छू सकते। आइंदा आपकी जानिब से बरेलवी जमात के ताल्लुक से एक लफ्ज भी गलत नहीं आना चाहिए। लफ्ज छोड़िए, आप बरेलवी जमात को मैं पूरी कोई गलत समझता हूँ तो आप लफ्ज। मैं तो पूरी देवबंदी जमात की तकफीर करता हूँ, और मैं तुम इतने बड़े जाहिल हो कि आपको मुनाजरे की तारीफ नहीं मालूम कि मुनाजरे की तारीफ क्या है। ये आपकी जहालत भरा ये ऑडियो आपकी मेरी गुफ्तगू का इंशाअल्लाह रहमान इंटरनेट पर फैलेगा, और जो आप देंगे हाँक रहे थे ना, कौम के सामने आपकी सही शक्ल आ जाएगी कि आप कितने काबिल हैं, कितने बड़े अल्लामा हैं। अल्लामा बिल अलिफ हैं या अल्लामा बिल आइन हैं? आप अपनी हैसियत वाजे कर दीजिए। और अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हैसियत इतनी देर की गुफ्तगू में वाजे हो गई मौलाना, ज्यादा बकराती मत छाड़ो। मुझे तो लगता है कि अभी आपके पसीने छूट रहे होंगे। आपने डेंगे तो हाँक दी इंटरनेट पर। नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं सुजानगढ़ में आने का खर्चा, तो मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं सुजानगढ़ में आपका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। अपनी हैसियत बताइए, मैं आपको मुनाजरे का मौजू दे दूंगा, शर्तें तय हो जाएंगी। मैंने अभी आपको मेरा तारुफ करा दिया। मेरे ख्याल से आपको शिकले समात का मर्ज है, आप जरा ऊंचा सुनते हैं। मैंने बता दिया, फकीर का नाम मोहम्मद कलीम हनफी रजवी है और एक इदारे में बम्बई में खादिमुल हदीस की हैसियत से हूँ। फिक्र की हदीस की किताबें पढ़ाता हूँ। इंटरनेट पर जाकर मेरे बयानात सुन लें, मुनाज़रे सुन लें, मेरी किताबें हैं रद्द गैर मुकल्लिदियत पर, पढ़ लें, आप पर मेरी हकीकत वाज़े हो जाएंगी। ठीक है, सब कुछ होगी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपको 4 सतर की एक तहरीर देने। नहीं, 4 सतर की नहीं, अरे मैं आपको 8 सतर की तहरीर दूंगा।
लेकिन आप आज के बाद जो है ना फारूक खान रजवी साहब से खिताब नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको तहरीर दूंगा, आप मुझे फोन पर ही जो जो बातें मैं पूछूंगा ताकि मेरा यकीन कल्बी हो जाए कि भाई सामने वाला जानता है कुछ, आप फोन पर जवाब देंगे, उसका कबूल है? किसका जवाब देंगे सर? अभी जैसे मैंने मुनाजरे के हवाले से पूछा, मुनाजरे की तारीफ आप नहीं बता पा रहे हैं, और भी कुछ बातें पूछी मैंने बुनियादी, आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इस पर इसरार कर रहे हैं ना कि मैं तहरीर दूं, तो भी हम थोड़ी देर में मैं तहरीर देता हूँ। बताइए व्हाट्सएप पर भेजना है तहरीर जी? आपकी शान अगर आप उस्ताद हदीस हैं कि आप वक्त से पहले ही जो है मतलब बात करनी शुरू कर दें मैदान मुनाजरे में, मैदान मुनाजरे में ऐसा है मौलाना साहब, आप अपने आप को देवबंदी जमात का बड़ा जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपके जिम्मेदार होने के हवाले से कहीं सुना नहीं कि आप जिम्मेदार भी हैं। नहीं तो ये शर्त थोड़ी है कि आप मतलब जिम्मेदार होने के लिए ये शर्त है कि आपके इल्म में आनी जरूरी है। अरे फिर आपने मुझसे क्यों कहा कि फारूक खान के मुकाबले में आपकी शोहरत उतनी नहीं है, और आप अपनी क्या है, आपकी जमात में आपका क्या मकाम और मर्तबा है बताएं। तो आपने भी तो इस बात की मुझसे दलील तलब की ना। वो आप मुफ्ती मतीउर रहमान साहब से पूछ लिए कि मेरा मकाम और मर्तबा मेरी मुफ्ती मतीउर रहमान को तो बीच में मत लाइए। मुफ्ती मतीउर रहमान साहब ने अच्छे अच्छों का नाश्ता बनकर रखा है और उनके नाम से बिला वजह आप धौंस जमा रहे हैं। और मौलाना यही मेरा नंबर है जिससे अभी कॉल की थी मैंने थोड़ी देर पहले, 9820 672 770, आपने उठाया नहीं, और दूसरे नंबर पर कॉल किया मैंने। आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, मैं तहरीर देता हूँ। आप सुजानगढ़ आने जाने का मेरा खर्च बर्दाश्त कीजिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर जनवरी आखिर तक सुजानगढ़ पहुंच जाएगा। अब मुनाजिर आप ही होंगे, ठीक है? ठीक है ना? हाँ अभी व्हाट्सएप पर आइए आप।